A very warm welcome to the respected teachers and the incredible students. I am so grateful to welcome our students to the commencement ceremony of orientation program. Technia Institute of Teacher Education. I feel privileged to open this event and stand here, where many accomplished people who I admired and look up once stood. A very special welcome to our chief guest, Dr. Ram Kailash Gupta. He truly set a benchmark for multi-hyphenated achievements. He is an entrepreneur coach. Thank you for accepting our invitation to address our students who are about to start another new chapter in their lives. First of all, I want to tell you about your institute, that is Technia Institute of Teacher Education. This is an institution where excellence is tradition, is one of the premier education organization dedicated to impart quality education and the promoting excellence in realms of teachers and education. TIT is possessed. Technia Institute of Teacher Education, we supposed to abbreviate it as TIT or TIT, is possessed with the objectives of turning out high caliber professionals to meet rapidly growing needs of the education fields. This is our induction program. In this program, we will tell you about all the curriculum, all the objectives of the education. This education is literally or partially different from the education that you have impart from your school or from your colleges. This education relates to the special education. That means ki, education relates to the special needs children. Okay, the term induction is generally used to describe the whole process whereby the incumbents adjust to acclimate to the new roles and environment. In other words, it is a well-planned event to educate the new entrants about the environment in a particular institute. Student induction program engages with the new students as soon as they come into the institutions before regular classes start. At the start of the induction, incumbents learn about the institutional policies, processes, practices, cultural values, and their mentor groups are formed. So to begin our we can say the orientation program, I would like to call Saraswati Sharma ma'am to welcome our students. Ma'am, your efforts in organizing academic activities not only benefited the entire student generation, but also will promulgate the upcoming generation to strive for a better future. Ma'am, you have always raised the benchmark for hard work and dedication in society. All in all, I would like to say that you have made an absolutely secure decision to be a part of this institution. Before going through, I would like to call all the HODs, all the faculty members with Saraswati Sharma ma'am to lightning. Mrs. Saraswati Sharma ma'am to bless our students. We have gathered here for students orientation program in order to welcome the student in our Technia Institute of Teacher Education for a new academic session 2023-24. I congratulate you for choosing this profession. You are the future of the country and we are here to guide you towards the right direction. You should to loyal and honor towards this profession. You have enrolled in this institute to pursue a professional course which demands you to work hard as you will be trained and teach the future of our country. I would like to enlighten and ensure
You that all the teacher will help mentor you in every possible way. All the class in charges will act as a mentor to all their respective students. They will provide guidance, motivation, emotional support, and role modeling. In this institute, we will give our best to help in explaining careers, setting goals, and deciding for the future. I, along with all the faculty, will help you make a smooth transaction. You can share any problem with your class in charges. They will help you in every situation. Let us together make this year productive. Thank you for being here and for your patience. I wish you all have a great year ahead. Thank you, all of you. The student induction could cover a number of different aspects, that is SAGE. What does S means? S means socializing, meeting or new student, setting some rules in the college premises. A means associating the visits. Where are the visits? To the college, to the department, to the branch, to the program of study, or to the important places like your internship areas and all that. G, that's it, that is for governing rules and regulation. There are certain rules and regulation in the college that you must follow and that you should follow also in the college or in your life also. And that is experiencing. I say GE, the E is experiencing. Experiencing subject, lecture, study skills, small group activities, physical activities, creative and performing arts, literary activities, universal human values, and many more things. So all the things that you have to do in your TIT, that is Technia Institute of Teacher Education. Now I would like to call Ms. Anju Bala for the introduction of subject faculty with timetable, syllabus, attendance, scheme of examination, continuous evaluation system training, educational visits, assignments, lecture plans, notes, etc. Yes, Ms. Anju Bala ma'am for the HI department. Respected Saraswati ma'am and another my faculty and my dear student. तो मुझे आपको आज जो रिप्रेजेंट करना है हियरिंग एम्पेयरमेंट जो आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स है उसमें आपका किस तरीके से पूरा फॉलोअप होगा 1 ईयर का, पूरा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर किस तरीके से आप फॉलो करेंगे चीज़ों को, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, सिलेबस क्या रहेगा, प्रैक्टिकल्स में आपको क्या सीखना है, यही सब आपका रहेगा. डीएड स्पेशल एजुकेशन, तो आपने देखा होगा कि डीएड वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन इसके आगे जस्ट एक वर्ड और है, स्पेशल. अभी तक आप जो टीचर बोलते हैं सब नॉर्मल आप लोगों से पढ़ के आए हैं. जो आप बनोगे वो क्या बनोगे, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, पर जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर जो आप बोल रहे हो, आपको लगता है स्पेशल बच्चों को टॉलरेट कर पाओगे. जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे. कुछ बच्चों के पास आपको कॉकलियर इम्प्लांट दिखेगा, कुछ बच्चे आपको हियरिंग एड वाले दिखेंगे, कुछ बच्चे नॉर्मली आपको साइन लैंग्वेज वाले दिखेंगे. तो इस तरीके के जो बच्चे हैं आपको उन्हें टीच करना है. तो आपका जो मेन कोर्स है जो डीएड स्पेशल एजुकेशन है उसका मेन क्या है, तो ये जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स है ये आपको जो डिसेबिलिटी है यानी कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबल हैं उनको टीच करने के लिए बनाया है, ताकि आप डिसेबल बच्चों की नीड्स को समझ के उनके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान कर सको, उन्हें पढ़ा सको और इन फ्यूचर उन्हें वोकेशनल के लिए उनका ट्रांजैक्शन कर सको. तो जो ये कोर्सेज हैं ये आपके सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ टीचर नहीं, आपका जो इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे प्री स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारे बच्चे एनरोल होते हैं. तो जिसको आप टीच करोगे तो आप किस लेवल पे हो, डीएड. तो यानी कि आप जो प्राइमरी टीचर है, प्री स्कूल के जो बच्चे हैं और प्राइमरी उन बच्चों को आप टीच करोगे. तो आप सिर्फ उन्हें
किस सेटअप में? जो हमारा एजुकेशन का सेटअप है, आपने अभी तक नॉर्मली नाम सुने होंगे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो ये स्कूल्स के वो सिर्फ एक उनका एफिलिएशन है कि ये गवर्नमेंट चलाती है, ये प्राइवेट यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन यानी कि एक पर्सन चलाता है। लेकिन जो मेनली स्कूल हैं आपके, वो आपके स्पेशल स्कूल, जो टाइप्स होती हैं वो आपके स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, इस तरीके से होते हैं। तो आप जब टीचर बनोगे, जब बच्चों को टीच करोगे, तो आप इंक्लूसिव सेटअप में करोगे, यानी कि जहाँ पे आपको नॉर्मल बच्चे भी मिलेंगे, स्पेशल बच्चे भी मिलेंगे, SC ST, मतलब हर तरीके के बच्चे होते हैं जिन्हें टीचर क्या करेगा? टीच करेगा। तो ये आपका क्या है? कोर्स है जिसमें आप ये काम करोगे। आप सिर्फ टीचर ही नहीं, आप होम ट्रेनिंग भी दे सकते हो उन्हें, यानी कि घर पे जाके जैसे ट्यूशन वगैरह इस तरीके से दे सकते हो। जो मोस्टली मोड यूज करते हैं वो आपका ब्लेंडेड रहेगा। तो जो डीएड स्पेशल एजुकेशन है ये क्यों बनाया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? हम लोग नॉर्मली डीएड भी होता था पहले, बीएड होता था, तो नॉर्मली उसी में पढ़ा सकते थे। लेकिन हमारे लिए एक स्पेशल कोर्स बना, डीएड स्पेशल एजुकेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? तो जितनी भी डिसेबिलिटी हैं इस कोर्स के अंदर आपको उनके बारे में समझ मिलेगी। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा RPWD। PWD जब आप फॉर्म भरने गए होंगे कहीं पे भी, आप PWD वर्ड तो जरूर देखते होंगे। तो उन PWD लोगों के लिए एक एक्ट बना था जिसका नाम है RPWD। उसके अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटी हैं, जिनका कैटेगरी आप जो 21 डिसेबिलिटी हैं उन सभी बच्चों को जानोगे, उन्हें देख के, ऑब्जर्व करके, उनके साथ वर्क करके आपको पता चलेगा किस तरीके का बच्चा है। तो मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इन जो डीएड स्पेशल एजुकेशन HI जो कोर्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिसेबल बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के, आप उन्हें अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे कि सिर्फ उनको एक ही डिसेबिलिटी है या कोई अदर भी उनको साथ में है। नॉलेज ऑफ टिपिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो एक बच्चा होता है नॉर्मली उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन डिसेबल बच्चा है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या डिफरेंस रहा होगा, क्या लैक किया कि उस बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अंडरलाइंग फिलॉसफीज, इवोल्यूशनरी प्रैक्टिस एंड पॉलिसी प्रोविजन। तो आप फिलॉसफी, जैसे आप लोग फिलॉसफी देख, कोई आइडियलिज्म को फॉलो करता है, कोई नेचुरलिज्म को फॉलो करता है, तो आप क्या करोगे, उन बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आप फिलॉसफी अपनी फॉलो करोगे, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिसेस करोगे कि बच्चा है उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का, उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए क्या करोगे, प्रैक्टिसेस, जिससे वो अच्छे तरीके से चीजों को सीखे। और पॉलिसी, जो पॉलिसी प्रोविजन है वो आप क्या करोगे, उनको बताओगे कि आपका UDID कार्ड बनता है किस तरीके से, सर्टिफिकेट कैसे, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या कंसेशन है, उन सब के बारे में, कि डिसेबल बच्चों के लिए क्या क्या प्रोविजन हमारी गवर्नमेंट बनाती है। प्लानिंग एजुकेशनल एंड अदर रिलेटेड, तो उनकी एजुकेशन का जो प्लान है, जो लेसन प्लान, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो जो लेसन प्लान बनाते हैं तो उनकी जो एजुकेशन का प्लान पूरा, चाहे वो उनका डेली का है, मंथली का है, ईयरली का है, वो आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और उन रिलेटेड जो इंटरवेंशन है कि इसको थेरेपिस्ट के पास जरूरी है, कुछ बच्चे स्पीच करते हैं तो आप सजेस्ट करोगे ना कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजो। किसी बच्चे को बिल्कुल ही नहीं सुनता, वो स्पीच में भी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आप बोलोगे कि इसको इंडियन साइन लैंग्वेज में भेजना चाहिए, इसको साइन लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए। ये उसके क्या है, इंटरवेंशन होंगे कि इसका ऑडियोग्राम कैसे बनेगा, यानी कि कैसे पता चलेगा बच्चे को कितना सुन रहा है, कितना नहीं सुन रहा है, किस डिग्री का है, किस तरीके का है। तो वो आप सारी चीजें इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। करिकुलर अडेप्टेशन, करिकुलर अडेप्टेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने हमारा एक सिलेबस बना के हमें दे दिया। आप NCERT की बुक देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या की, एक बुक दे दी, ये फर्स्ट क्लास की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है। पर आप जब डिसेबल बच्चों के साथ डील करोगे तो आपको क्या करना है, जो आपको मटेरियल मिला है आप उसको बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। अगर एक मेरा मित्र है फॉर एग्जाम्पल, वो आपको 10 लाइन में मिला है, तो आप डिसेबल बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या करोगे, या तो उन लाइनों को आप इजी करोगे, साथ में पिक्चर ऐड करोगे, यानी कि इस तरीके से प्लान करोगे कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखे। आज तक जब आप लोग भी स्कूल में गए होगे तो ऐसा नहीं कि टीचर ने हमें क्वेश्चन दिया, हम रट्टा मार रहे हैं कि 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 कर लिए, लिख दिया एग्जाम में। हम स्पेशल बच्चों को उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते, हमें उनकी नीड को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिएटिव तरीके से अडेप्टेशन करनी होगी। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि बच्चे की जो नीड है, जो उसकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको मटेरियल प्रोवाइड करना।
जिसको वो अच्छे से सीख सके और अपनी लाइफ में उसका यूटिलाइज कर सके। एंड फैसिलिटीज, तो उसके लिए काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो जो टीचर मेन काम करता है वो एक टीचर का काम नहीं करता, वो उसके लिए एक फैसिलिटेटर का काम करता है। तो उसको वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि मटेरियल प्रोवाइड करवाना, अगर उसको मटेरियल से सिर्फ रिटन से समझ नहीं आ रहा तो विजुअलाइज प्रोवाइड करवाना, उसको लाइफ के बारे में कि आप किस तरीके से क्या जॉब कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी सोशल लाइफ के बारे में, यानी कि उसको गाइड करना। रियलाइज द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ फैमिली, तो जो आपका मेन वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझनी है, आपको अपने रोल की इंपॉर्टेंस समझनी है। आप क्या बनोगे, स्पेशल एजुकेटर। तो एक स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है, आपको वो इंपॉर्टेंस समझनी होगी। एंड रोल ऑफ फैमिली, और उसके अंदर आपको सिर्फ अपना नहीं, आप, क्योंकि हर किसी की फैमिली अवेयर नहीं होती डिसेबिलिटी के लिए, तो आप साथ में किसको लेके चलोगे, फैमिली को भी, उसके पेरेंट्स हैं, हर किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको आप बताओगे कि किस तरीके से, क्योंकि बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे रहता है, उसके बाद बच्चा किसके साथ रहता है, फैमिली के साथ। तो फैमिली को भी आप साथ में क्या करोगे, अवेयर करोगे, ताकि वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करे, अच्छे से उसके इंटरवेंशन में हेल्प करे, जिसकी वजह से जो HI बच्चा है वो नॉर्मली सबके साथ क्या हो सके, मिक्स हो सके, यानी कि सोसाइटी में वो एडजस्ट कर पाए। नॉर्मली अगर किसी ने हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा देखा तो किस तरीके से देखा है, अलग बैठता होगा, क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है वो किसी के साथ। अगर एक बच्चा है वो अपनी मम्मी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपने पापा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम किसे सुनाएगा, क्यों क्यों जाएगा, तो उसके लिए आपको भी तो समझने होंगे ना इशारे। तो जब आप डीएड का कोर्स करोगे तो वो इशारों की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी ना, तभी तो उसके इशारे आप समझ पाओगे, तभी तो आप उसे पढ़ा पाओगे। तो यही आपका मेन रोल होगा। नेक्स्ट जो सिलेबस रहेगा आपका फर्स्ट ईयर के अंदर, आपके 1 साल में 6 पेपर होते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसमें आपको पूरी सभी जो 21 डिसेबिलिटी है उनका ओवरव्यू होता है। एक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, ये सिर्फ हियरिंग इंपेयर्ड कोर्स के जो बच्चे हैं सिर्फ उनका सिलेबस है, बाकी का नहीं है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज किस तरीके की होती है, कैसे बनती है, बच्चे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग तो बोल के कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन डेफ बच्चे हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, क्या मोड यूज करेंगे। नेक्स्ट है हियरिंग इंपेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर आप पूरा आपका कान किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको सुनाई देता है, अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ पे होती है, किस तरीके की होती है, कितनी सिवियरिटी होती है, और उसका ऑडियोग्राम कैसे करते हो, आप पता कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें आप इस पेपर के अंदर करोगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, आपने एक वर्ड सुना होगा साइकोलॉजी, तो नॉर्मली आप इसको साइकोलॉजी जैसा पेपर ही समझ के चलिए। इसके अंदर आपका डेवलपमेंट, बिहेवियर, सभी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, लेकिन जब बच्चा डिसेबल होता है तो उसके बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं, उसके डेवलपमेंट में क्या क्या चेंज होते हैं, तो वो सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, कि आपकी स्पीच कैसी होती है, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और किस तरीके से आप बच्चों को स्पीच टीच कर सकते हो। जैसे प्राइमरी लैंग्वेज आपकी होती है कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप अपने इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं। अभी मम्मी पापा आपको बार बार तो नहीं बोलते कि माँ बोलो, पापा बोलो, ये बोलो, कोई बोलता आप सुन के क्या कर लेते हो, ऑब्जर्व करके सीख लेते हो, साथ साथ में इमिटेट करके सीख लेते हो। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, डेफ बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, वो लैंग्वेज टीच करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहां से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से होता है, आप ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको क्या करवानी पड़ेगी, उनको प्रैक्टिस। वो किस तरीके से करते हैं वो आप इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है करिकुलर स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड स्पीच डिसेबिलिटी। तो आपके जो डिसेबल बच्चे होते हैं तो इनको स्पीच की भी प्रॉब्लम होती है। आप ये बताइए कि कोई बच्चा बोल नहीं सकता तो उसकी मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों को सुनाई ही नहीं देता है, सुनाई ही नहीं देता है। अगर उसे कुछ सुनेगा ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो वो बोलेगा क्या।
अभी आपसे इन पेपर के बारे में पूछे कि अच्छा आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए, तो क्या आप कर सकते हो? क्योंकि आपने कुछ सुना ही नहीं है इसके बारे में। तो सेम जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है, पर लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि ये बोल नहीं पा रहा है। कोई उसकी हियरिंग टेस्ट के लिए नहीं जाता है नॉर्मली, वो बहुत बाद में जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो 98% बच्चे होते हैं उनमें यही होती है कि उनको सुनाई नहीं देता है। अगर सुनाई किसी को देता है तो बहुत माइनर सुनाई देता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीच के अंदर क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, स्पीच या डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो पेपर है तो आपको उनका करिकुलर का मतलब जो उनका एकेडमिक जो आप सिलेबस जो आप पढ़ाओगे वो किस तरीके से प्लान बनाओगे, बच्चे को टफ लग रहा है तो उसको इजी बना के किस तरीके से उसको सिखाओगे, ये इस पेपर में करोगे। ये आपके फर्स्ट ईयर में 6 पेपर रहेंगे। आपका 45 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो थ्योरी एग्जाम होगा 45 का होगा, 30 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपकी क्लास परफॉर्मेंस कैसी है, वो आपको उसके बेस पे दिए जाते हैं। आप एक इंटरनल जो टेस्ट देते हैं उसमें कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, तो ये सब चीजों के बेस पे वो आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस रहेगा। 6 पेपर सेकेंड ईयर में होते हैं, तो पूरे 2 साल का मिला के टोटल आपको 12 पेपर पढ़ने हैं। तो इसमें आप एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी में एजुकेशन, सोसाइटी में क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या चीजें बनाता है डिसेबिलिटी के लिए, किस तरीके से चीजें फॉलो होती हैं। फिर नेक्स्ट में जो एजुकेशन है, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को वो किस तरीके से दी जाती है, स्कूल की टाइप क्या है, किस तरीके से है। फिर यह मेथोडोलॉजी, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, क्या टीच करोगे आप, साइंस मैथ जो आप पढ़ाओगे, तो इसमें उनकी पेडागोगी होती है। पेडागोगी का मतलब होता है कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने का जो वे है, जो ढंग है, वो आपका पेडागोगी होता है। तो इसके अंदर आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो, क्या मेथड यूज करोगे, क्या मैगजीम्स यूज करोगे, क्या स्ट्रेटजी, क्या टेक्निक, तो वो सब आप इसमें पढ़ोगे। एक होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि सभी बच्चों को आप एक साथ किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होगा फैमिली एंड कम्युनिटी, कि डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनका फैमिली एंड कम्युनिटी के लिए किस तरीके का रोल होता है, फैमिली क्या रोल प्ले करती है, कम्युनिटी क्या रोल प्ले करती है, आपके पीयर्स क्या रोल प्ले करते हैं, पीयर्स मतलब आपके फ्रेंड, क्लासमेट, तो वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करते तो बच्चा कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होता है, उन चीजों के बारे में आप इस पेपर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर वही आप सोशल साइंस की मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल, ये आप प्रैक्टिकल में पढ़ोगे, टीचिंग प्रैक्टिस करोगे। टीचिंग प्रैक्टिस के लिए पहले आप ऑब्जर्व करोगे कि टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, फिर लेसन प्लान बनाओगे, आप खुद प्रेजेंट करोगे। ऑब्जर्वेशन, जो कंटेंट होता है वो किस तरीके से, आपकी जो बुक्स है उनको कैसे अडॉप्ट करोगे, प्रैक्टिकल लेसन किस तरीके से बनाओगे। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एरिया, मतलब कम्युनिकेशन ऑप्शन, कि ओरल कर सकते हैं, टोटल कम्युनिकेशन करते हैं, एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म। जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको पहले सिखाई जाएंगी, उसके बाद आपको इनका प्रैक्टिकल बनाना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एरिया 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे जरूरी सीखना है, इंडियन साइन लैंग्वेज, आपका स्किल डेवलपमेंट। अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट के स्पेशल एजुकेटर बन रहे हैं तो आप सिर्फ स्पीच से एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आपको साथ में इंडियन साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कुछ क्लासरूम में, कुछ यूट्यूब से, कुछ सोसाइटी से, इन्वायरमेंट में कोई आपको डेफ मिल गया, इस तरीके से आप अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ क्लिनिकल चीजें होंगी, जैसे ऑडियोलॉजी हो गया, स्पीच हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ऑडियोलॉजी में मतलब आपकी ऑडियो की थेरेपी, यानी कि किस तरीके से बच्चे को एसेस किया कि इसको हियरिंग लॉस है। स्पीच में उसको स्पीच थेरेपी दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो। साइकोलॉजी में उसका बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सारी चीजें आप चेक करोगे। जो प्रैक्टिकल एरिया 5 है वो आपका होंगे लेसन प्लान, जो आप डिसेबल और नॉन डिसेबल, क्योंकि आप इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाना आना चाहिए और नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाना आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। ये आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, फिर क्योंकि ज्यादा अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें सेम ही है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। यह आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों का अभी थोड़ा चेंज हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन एवाईजे, मतलब आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एवाईजे है, तो उसका जो है वो मेन परसों ही आया है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। आपके ट्रू फॉल्स होंगे 5 मार्क्स के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फॉर
और नेक्स्ट आपके वन वर्ड, एक शब्द में आंसर देना, ये होंगे 9 मार्क्स के। आपके शॉर्ट नोट होंगे, आपको शॉर्ट नोट कोई भी 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से 4 चूज करके आपको बताने हैं। फिर डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं आपको, कोई भी 2 या 3 दे दिए जाएंगे, एक 8 मार्क्स का लिखना है, एक 7 मार्क्स का लिखना है। तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स जो है कंप्लीट होते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो 45 मार्क्स का ही होगा। आपको थ्योरी से ज्यादा किस पे फोकस करना है? प्रैक्टिकल पे। जितना आप प्रैक्टिकल सीखोगे उतना ही बच्चों को अच्छे से समझ पाओगे, सिखा पाओगे। विदाउट प्रैक्टिकल के सिर्फ थ्योरी से आप कुछ नहीं कर सकते। चीजें दोनों जरूरी हैं, पर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल कब सीखोगे? जब आप रेगुलर कॉलेज आओगे, अच्छे से पढ़ोगे तब। थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरह से हियरिंग इम्पेयरमेंट समझाया। आपने बताया कि लिमिटेशंस क्या हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर बनने की आपने प्रेरणा दी है हमारे बच्चों को। अब मैं आगे मिस्टर संदीप सर को बुलाना चाहूँगी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट फैकल्टी विद टाइम टेबल, सिलेबस, अटेंडेंस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ फॉर DED VI विजुअल इम्पेयरमेंट। संदीप सर। मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कोर्स चूज़ किया है और आप सभी का वेलकम है अष्टावक्रा और टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से। क्योंकि आपने जो कोर्स चूज़ किया है उस कोर्स की बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और आगे आने वाले टाइम में आपको पेरेंट्स की ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। सेकंड, आपको जॉब तो मिलेगा ही, प्लेसमेंट तो है ही है, और ऐसी चीज़ आप लर्न करेंगे जो कि आपसे अभी तक जो आपने 12th क्लास में लर्न किए हैं उससे काफ़ी हट कर होगा। तो इन्जॉय भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, और सब्जेक्ट तो है ही है, थोड़ा टफ तो होगा ही। ओके, तो उसके सभी के लिए आप सभी का स्वागत है कि आपने इस कोर्स को चूज़ किया है। सेकंड बात हम करते हैं आपको कोर्स ड्यूरेशन की। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट का जो कोर्स है, जो नए बच्चे यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं विजुअल इम्पेयरमेंट फील्ड से, उनके लिए जो पहला जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का प्रोग्राम है और 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। 2 इयर्स का प्रोग्राम 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, यानी आपको 1 ईयर और एग्जाम आपकी एवरी ईयर होने हैं। कोर्स भले ही सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है बट एग्जाम आपके एवरी ईयर होंगे। तो एक साल में 2 सेमेस्टर इंक्लूड हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, एंड सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। ओके राइट। अब हम नेक्स्ट भी बात करते हैं स्किल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये कैरिकुलम जो डिजाइन किया गया है विजुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए हो या अदर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जो नॉलेज यहाँ पे गेन होती है वो होती है स्किल बेस होती है, नीड बेस होती है, प्रैक्टिकल बेस होती है। जैसे मैम ने भी बताया ना, प्रैक्टिकल बेस नॉलेज। विदाउट प्रैक्टिकल आप थ्योरी पेपर भी कवर नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो को रिलेशन है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला करके है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल पार्ट को मजबूत कर लिया तो थ्योरी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए हम वर्क करते हैं खास करके प्रैक्टिकल पार्ट पे। ओके, तो हमारे जो कैरिकुलम डिजाइन्स हैं वो स्किल बेस्ड है, नीड बेस्ड नॉलेज है कैरिकुलम, एंड सेकेंड बात करते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज। तो आपके यहाँ पे जो स्किल डेवलप होने वाली है खास करके विजुअल इम्पेयरमेंट्स फील्ड बच्चों के लिए, वो स्किल आपके अंदर आने वाली है ब्रेल लिपि। बहुत आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या से आपके कभी जीवन काल में आपसे कोई बच्चा टकराया होगा जो कि ब्लाइंड पर्सन हो या ब्लाइंड चाइल्ड हो। तो ब्लाइंड में एक सेंस हमारी बिल्कुल लेस होती है या कुछ होती भी है जिसको लो विजन भी कहते हैं, और कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल टोटली ब्लाइंडनेस होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो उन बच्चों के लिए हमें एक ब्रेल लिपि कोई भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, वो एक लिपि है जो कि जो आपके तमाम लेटर्स हैं, या इंग्लिश के लेटर हो या हिंदी की वर्णमाला हो या मैथमेटिक्स के नंबर्स हो 1 से लेकर के 0 तक, वो सारी एडॉप्ट हो रखी हैं ब्रेल के पार्ट में। यानी ब्रेल डॉट बेस होगा, जो कि आपको एक ब्लाइंड पर्सन को डॉट के माध्यम से बच्चा पढ़ता है। वो चीज़ आपको सारी चीज़ स्किल ये 2 इयर्स में ही डेवलप होगी, बट आपको अपनी अटेंशन को कायम रखना है और ध्यान से सुनते रहना है और कंटिन्यू अपने कोर्स को रेगुलर क्लास लेकर के आपको अटेम्प्ट करते रहना है। सेकेंड बात हम करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस सभी पार्ट के लिए बहुत मजबूत है, जो कि आपको अगर आप 80% अटेंडेंस अपनी मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर्स हों या थ्योरी पेपर्स हों। इसलिए आपके लिए अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको मेंटेन रखना है।
और अटेंडेंस मेंटेन रखने के लिए आपको, आप क्योंकि नए बच्चे हैं, आपके सीनियर्स भी मिलेंगे, अटेंडेंस मेंटेन रखने के लिए भी आपको मैनर्स और डिसिप्लिन दोनों में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उन दोनों चीज खो देते हैं तो अटेंडेंस भी आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा और आप एग्जामिनेशन में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप नए हैं, इस चीज को आपको समझना है और जैसे जैसे आपको टीचर्स गाइड करते जाएंगे आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन रखना है। उसकी बात हम करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत डाउट रहता है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेकर के। क्वेश्चन पेपर अभी मैम ने भी बताया, मैं भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। क्वेश्चन पेपर हमारा जो पैटर्न है वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। वैसे सभी जितने डिप्लोमा कोर्सेज हैं सब में जो पैटर्न है वो सिलेबस सेमेस्टर वाइज ही है, तो सेमेस्टर वाइज में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो सभी का सेम होगा। लेकिन यहाँ पे निपमेट एक जो आपका एमडी या डिप्लोमा आईडीडी है वो उस चीज को रन अप कर रहा है आपका निपमेट चेन्नई, और जो एनवीआर दूसरा विजुअल इंपायरमेंट के लिए वो देहरादून रन अप करता है। तो इसमें 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आपके 20% मार्क्स गिवन होंगे और जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें भी 20%, थर्ड एंड फोर्थ इसमें 30% आपके मार्क्स उसमें रहेंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सेकंड बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट थ्योरी पेपर्स में टोटल सभी डिप्लोमास में 6 पेपर्स अलॉटेड हैं, अपने में भी 6 पेपर अलॉटेड हैं। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो कॉमन पेपर है। कॉमन का मतलब ये होता है कि हर डिप्लोमा से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। जैसे आपका पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ये कोर पेपर है, ये हर डिप्लोमा में इंक्लूड होगा, चाहे वो एमडी का हो, चाहे एचआई का हो, चाहे वीआई का हो, चाहे आईडीडी का हो। ये हर कॉमन पेपर है, कोर पेपर है, जो कि सारे डिप्लोमास में इंक्लूड है। और दूसरा पेपर जो कॉमन आता है, कोर पेपर का आता है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो भी मैम ने बताया ना साइकोलॉजी का पेपर है। ये साइकोलॉजी का पेपर सभी में कोर पेपर है, यानी कॉमन पेपर है, सभी में रहेगा। इसमें जो इंक्लूड हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं 102 पेपर कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन्स। यहां आपको उसकी लिमिटेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, उसकी एजुकेशनल नीड्स, उसकी एडॉप्टेशन, उसका कैरिकुलम, ये सारी चीजें बातें इसमें रखी जाएंगी, जो का पेपर होगा 102। ओके राइट। हम तीसरे पेपर की बात करते हैं, जैसे पेडागोजी ऑफ ईवीएस साइंस। ब्लाइंडनेस और हेयरिंग इंपेयरमेंट, 2 तरह के जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें ज्यादातर बच्चों को मैथोलॉजी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड रहता है। आपको मैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे अगर ब्लाइंड की अगर आपने अभी कभी विजिट नहीं किया है, आप विजिट करोगे तो वहां देखोगे उनका जो करिकुलम पार्ट होता है वो बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल की स्कूल होते हैं 1 to 12 तक के, ऐसे उनके यहाँ स्कूल होते हैं, है ना। बस उनमें क्या अडॉप्ट हो जाता है, एक ब्रेल। ब्रेल एक ऐसा पार्ट है जो उस बच्चे को दिखता नहीं है, इस वजह से दिखने को कंप्लीट करने के लिए ब्रेल अडॉप्ट हो जाता है। बाकी सारे करिकुलम जैसे हम पढ़ते चले आए हैं वैसे बच्चा भी पढ़ता रहता है और क्लास वाइज प्रमोट होता रहता है। बस यानी आपको ब्रेल का जो पार्ट है आपको बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि तभी आप उस बच्चे को ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी उस बच्चे को चेक कर पाओगे और तभी उसको पढ़ा पाओगे। इसलिए ब्रेल इंपॉर्टेंट है। ओके, हम दूसरी बात करते हैं एजुकेशनल ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन्स। लो, अभी मैं बताया ना टाइप्स, 2 तरह के टाइप्स हैं, एक ब्लाइंडनेस की है और एक लो विजन्स की है। लो विजन्स जिसके अंदर कुछ विजन्स रहते हैं जिसको फुलफिल किया जा सकता है चश्मे के माध्यम से, कुछ लेंसेज के माध्यम से, कुछ मैग्नीफायर के माध्यम से उसको हम कवर कर सकते हैं। तो वो पेपर है आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन्स। एंड थर्ड पेपर भी दोबारा फिर आ जाता है मैथोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि पेडागोजी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ये आपके वही जनरल एजुकेशन के पेपर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको रिपीट किया ना कि जो हमारी क्लासेस जैसे हमारी 1 to 12 क्लास होती है, सेम ऐसा पैटर्न वो ब्लाइंड बच्चा भी फॉलो करता है 1 to 12 तक का। बस उसमें अंतर क्या जाता है कि जो चीज हम देख कर पढ़ रहे हैं, जो चीज हम सुन कर पढ़ रहे हैं, वो ब्लाइंड बच्चा उसको ब्रेल के माध्यम से पूरा करता है। बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आपकी किसी माइंड में लग रहा होगा ना क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ओनली यही है कि उस बच्चे के अंदर विजन सेंस नहीं है, वो देख नहीं पा रहा है, तो वो देखने वाली जो प्रक्रिया किससे पूरा कर रहा है, ब्रेल से पूरा कर रहा है। यानी ब्रेल एक ऐसा माध्यम उस बच्चे का है जो उसको पूरे पढ़ने वाले जो इतने भी करिकुलम्स हैं 1 to 12 क्लास तक के या हायर एजुकेशन के, वो सारी चीज कंप्लीट करता है ब्रेल के माध्यम से। तो ब्रेल का पार्ट बहुत मजबूत होना है, आपको उसी चीज को सीखना है 2 साल के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात है आपकी प्रैक्टिकल पेपर्स। प्रैक्टिकल ही आपका थ्योरी पार्ट को कवर करता है। तो आपका कैरिकुलम प्रैक्टिकल पार्ट, आपने जैसे ब्रेल अभी मैंने बताया ना कि ये इंग्लिश ब्रेल, यानी टोटल लेटर्स आपने पढ़ी होंगी ना, जो इंग्लिश में कितने 26 है, उन 26 लेटर्स को ब्रेल में
कन्वर्ट कर दिया गया है बस डॉट के फॉर्म में, बाकी वही लेटर्स रहेंगे 26 से, उसमें कोई चेंजेस नहीं। दूसरी बात करते हैं स्पेशल अप्लायंसेस की। अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, मैथ का कोई पार्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हम तो प्रिंट में करते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना हो, वो बच्चा क्या करेगा, वो एक डिवाइस अडॉप्ट हो रखी है जिसको हम कहते हैं अप्लायंसेस, टेलर फ्रेम एंड अबेकस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी उसको मैंने इमेज उसकी फोटो इसमें डाल रखी है अपने पीपीटी में। और जो चौथे पार्ट के हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो हैं टीचिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल और सेकंड जो है CWSN, जो बच्चे हमें चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जो हमें डोर टू डोर विजिट करने के बाद, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो होम बेस्ड सेशन लेना चाहते हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ पाते हैं, उनको हम होम सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अब आप देखें स्कूल मैंने इसमें मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से ऐसे स्कूल होंगे जहां पे मैं टीचिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, बच्चों को देखने का अवसर मिलेगा, कैसे बच्चे होते हैं ब्लाइंड बच्चे, कैसे पढ़ते हैं ब्रेल को, कैसे क्लास को प्रमोट करते हैं, कैसे वो डे टू डे अपनी लाइफ को बिल्कुल चलाते कैसे हैं, कैसे चलते हैं वो, है ना, कैसे हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं। इसलिए मैंने कुछ स्कूल सेलेक्टेड कर रखे हैं जहाँ पे हम बच्चों को यहाँ से भेजते हैं और बच्चा जाके वहाँ प्रैक्टिस करता है। पहला स्कूल आपने अष्टावक्र स्पेशल स्कूल, ये नाम सुना ही होगा, ये अपने मधुबन चौक सेक्टर 14 में है। और सेकंड स्कूल पड़ जाता है गवर्नमेंट बॉयज ब्लाइंड स्कूल, जो कि सेवा कुटीर GTV नगर में है। अगर वहाँ से कोई बच्चा आता होगा तो उसने कभी देखा होगा। दूसरी बात हम करते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल, ये पंचकुइया रोड पे है RK आश्रम में। ये ब्लाइंड स्कूल है, ये सारे स्कूल रन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे बच्चे 1 to 12th क्लास के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बच्चों की लिमिटेशन है, जैसे आपने स्कूलों में देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे सेक्शन बटे होते हैं, इनमें सेक्शन नहीं होता क्योंकि बच्चे की लिमिटेशन होती है, इतने सारे बच्चे नहीं हैं। फर्स्ट क्लास में मान लो 5 हैं तो सेकंड में 10 हैं, थर्ड में 3 है तो 4 में 8 हैं, इस तरह के बच्चे मिलेंगे, बट क्लासेज आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी। सेकंड है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, RK आश्रम में, RK पुरम में है। और भारतीय नेत्रहीन ब्लाइंड स्कूल है, ऑलियंस स्कूल है सेक्टर 8 में, जो कि इंक्लूसिव सेटअप को रन कर रहा है, एंड होम बेस्ड सेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर इस सिलेबस में बुक्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से में किताबों को पढ़ना है। वो मैंने कुछ बुक्स इसमें इंक्लूड किए हैं, आपको PPT में दिख रहा होगा। पहला पेपर जैसे भी बात कर रहा था ना, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि कॉमन पेपर है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको लाइब्रेरी में बुक मिलेगी, जो राइटर है डॉक्टर परमानंद मिश्रा है। ये पूरा का पूरा पेपर इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है और इन्होंने रिजॉल्व कर रखा है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर का, और इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी में नहीं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश का है इसमें। और सेकंड पेपर है एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, जो कि डॉक्टर RS जोसेफ की है, बहुत पुरानी किताबें हैं ये। असिस्टिव डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन, जो अभी मैं बात कर रहा था, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन्स, उस पेपर का आपको इसमें बुक्स मिल जाएंगे, डॉक्टर सुदीप दुबे जी की है। और हिंदी में कुछ मैंने किताबें एंटर कर रखे हैं, आपने देख रहे होंगे, अल्प दृष्टिहीन की शिक्षा, जो कि RCI की मैनुअल्स हैं और लाइब्रेरी में मिलेगी अपने टेक्निया टीचर एजुकेशन में, जो आप जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। दिव्यांगजन का परिचय, जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, उसका हिंदी वर्जन है दिव्यांगजन का परिचय, डॉक्टर आराधना मटानिया का है। और दृष्टिबाधित शिक्षण कौशल है डॉक्टर दुबे जी का। पुनर्वास का आयाम डॉक्टर जोसेफ जी, एंड समाज विज्ञान का शिक्षण डॉक्टर रेणु गुप्ता। ये सारे बुक्स हैं जो कि आपको लाइब्रेरी में एक्सेस करेंगे, आप वहाँ मिलेंगी, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। अब मैं अभी बात कर रहा था डिवाइसेस, आपको डिवाइसेस कुछ इमेज दिख रहे होंगे, ये डिवाइसेस हैं जिससे बच्चा ब्रेल को सीखता है, इसको कहते हैं ब्रेल स्लेट। और उसके साथ में जो दिख रहा होगा आपको ना, थोड़ा सा उस कलर में ग्रीन, लाइट ग्रीन में, वो है स्टाइलस, उसी के माध्यम से ब्रेल लिखी जाती है। इसमें पेज लग जाएगा और ब्रेल को हम लिख सकते हैं। वो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश एंड नंबर्स, मैथमेटिक के नंबर्स भी इसमें नंबर्स मिलेंगे। वो आपको 2 इयर्स में ही सारी चीज़ सारा कोर्स आपको डे टू डे आपको बताया जाएगा कैसे इसमें वर्क करना है। जो मैं अभी बात कर रहा था ना कैलकुलेशन मैथ की, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। जो टेलर फ्रेम है आपको दिख रहा है ना, वुडन कलर का होगा। और सेकंड अबेकस, इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स का। और अभी मैं कुछ पिक्चर्स मैं ग्लिम्सेस इसमें लेकर आया हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमें अपने 2 इयर्स के प्रोग्राम में CVR एक्टिविटी करनी है, यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जिसमें हम डोर टू डोर विजिट करते हैं, बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं और उन बच्चों को वो सर्विसेज देते हैं जो सर्विसेज उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं, चाहे गवर्नमेंट्स की हों, चाहे इंस्टीट्यूशन की हों, चाहे NGOs की हों,
है ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, अगर वहाँ तक स्कीम नहीं पहुँच पा रही है तो इस स्कीम को पहुँचाते हैं। ये मैंने कुछ ग्लिम्सेस लगा रखे हैं, आपके सीनियर्स हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने डोर टू डोर विजिट किया है और बच्चों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये देखो ब्लाइंड बच्चा है, एक ब्लाइंड पर्सन है जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस तरह की विजिटें हैं और ये ट्रेनिंग है जो कि आपको टाइम में मिलेगा, किस तरह हमें ट्रेनिंग्स लेनी है प्रैक्टिकल बेस की। बच्चे किस तरह ट्रेंड होते हैं, कैसे मोबिलिटी करते हैं, कैसे अपने घरों में चलते हैं, कैसे बाहर चलते हैं, क्योंकि ब्लाइंड्स को तो दिखता नहीं ना, तो ना दिखने की स्थिति में किस तरह वो केन का यूज़ करते हैं। विदाउट टेक्निक्स हम केन का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी ना हो केन कैसे यूज़ करना है तो आप उसमें नहीं चल पाओगे ना, फंस जाओगे, केन से टकराओगे, गिर जाओगे। तो यही चीज़ इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कैसे केन को यूज़ करना है, कैसे ग्रिपिंग बनानी है, कैसे इसको आर्क बनाना है, कैसे इसको लेफ्ट राइट करना है, पोजीशन कैसे रखना है, अगर मेरी केन गिर जाती है तो कैसे उसको उठाना है, डायरेक्शन क्या होता है ना। अभी अब मैं आपको एक छोटा सा इमेज बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि देहरादून जाना है तो सबसे पहले क्या करते हो आप, उसका ड्यूरेशन चेक करते हो, देहरादून की स्टेशन कहाँ पड़ेगा, जाने का रास्ता क्या होगा, ट्रेन कैसे होगी या बस कैसे जाएंगे हम, टाइम कितना लगेगा, सब कुछ चेक करते हो ना। अब एक ब्लाइंड पर्सन के लिए कैसे कितना मुश्किल है कि देहरादून जाना है, कैसे चेक करेगा वो, है ना। तो वो मोबिलिटी, ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो कि पार्ट है, जो कि हम ट्रेनिंग के थ्रू उसे बच्चे को मजबूत करते हैं कि कैसे हमें केन का कैसे यूज़ करना है। वो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आपको 2 इयर्स के प्रोग्राम में सारे सीखने का मिलेगा। और कुछ वर्कशॉप भी हम करते हैं। अभी मैं बताया ना कि हम डोर टू डोर विजिट करते हैं, जब बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको सर्विसेज देनी होती हैं। वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई जो सर्विसेज हैं, कैसे उन बच्चों को कुछ क्या कहते हैं स्मार्ट केन या व्हील चेयर्स, आप देख रहे हो ना व्हील चेयर्स लगे हुई हैं, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हुए हैं यहाँ पे वर्कशॉप के माध्यम से, है ना। हम बच्चों को, जो हमारे बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सर्विसेज, कोई चार्जेस नहीं होता। बट आपको बच्चे को आइडेंटिफाई करना है और ला करके यहाँ पे एंट्री करवानी है कि सर इस लोकेशन में, इस कम्युनिटी में इस तरह का बच्चा यहाँ पे रहता है, तो वो गवर्नमेंट से मिलने वाली सारी सर्विसेज हम उनको तक पहुँचाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं। एक वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया था जो पेपर्स में भी निकले थे, स्मार्ट केन, जो अभी मैंने बताया ना कि हमें चलने के लिए केन चाहिए। ब्लाइंड जो है ना एक स्टिक के माध्यम चलता है ना, व्हाइट केन लेकर चलता है, छड़ी है ना, उस छड़ी को तो हमने वहाँ से अपने कॉलेज से डिस्ट्रीब्यूट कराया था। लगभग 550 बच्चों को यहाँ से वो सुविधाएं दी गई थी, स्मार्ट केन बंटवाया गया था। लगभग 550 बच्चे, पूरे भारत के बच्चे यहाँ पे आए थे और इसी ऑडिटोरियम से बच्चे उस केन को रिसीव किए थे। ये सारे हमारे पेपर्स में कटिंग भी निकला हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। थैंक यू। थैंक यू संदीप सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर समझाया, प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस समझाई, साथ ही आपने असिस्टिव डिवाइसेस की इमेज दिखाई जिसमें टेलर फ्रेम है, स्लेट है, स्टाइलस है, ये सब आपने समझाया। थैंक यू संदीप सर। मुझे लग रहा है शायद हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इतने सारे पेपर्स हैं, इतना सारा कोर्स है, आज सब क्या बोलते हैं कंफ्यूज हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो। बट फर्स्ट डे बेटे आपको सबको सिलेबस मिल जाएगा, अपना अपना डीएड का आपको सिलेबस आपके सॉफ्ट कॉपीज़ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। आपको समझना आसान रहेगा। मतलब अभी आपको लग रहा है कि इतना सारा पेपर है कैसे होगा, है ना, बट अभी शुरुआत है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, नर्वस या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी चाहे आईडीडी है, एचआई है, एमडी है या वीआई है, सभी का जो बॉडी है एनबीईआर है ना, जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है, नेशनल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन, वो एनबीईआर ही है। अलग अलग इनके आपके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप डीएड कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, तो साथ ही साथ आप नॉर्मल एजुकेशन के लिए भी एनसीटी से जो आपका टाई अप हो रखा है, उसके लिए आप नॉर्मल एजुकेशन में भी जा सकते हैं। तो कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जैसे वीआई है या एचआई है, ये नॉर्मल में भी प्लेस हो सकते हैं, नॉर्मल जो आपके जनरल स्कूल्स होते हैं। बाकी आईडीडी और एमडी में भी इंक्लूसिव एजुकेशन की आपके पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगी सिद्धार्थ सर को, जो आपको बताएंगे डीएड एमडी के लिए कि क्या उसका कोर्स स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी फैकल्टी है, टाइम टेबल क्या रहेगा, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे रहेगा। तो सिद्धार्थ सर से हम जानेंगे। वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले तो बता दूं, ये जो आप सीरियस बैठे हैं ना, सीरियस बैठने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्माइल करो, क्योंकि जो आप जिस फील्ड में हो ना और स्पेशल बच्चे को पढ़ा रहे हो तो स्माइल जरूरी है।
है ना। जो कोर्स है आपका स्माइल का है, अगर आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो ही आप स्पेशल बच्चे को स्माइल दे पाओगे या उसके साथ काम कर पाओगे। ठीक है, तो पहले अपने स्माइल रखिए। स्माइल का कोर्स है, स्माइल से करेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो स्माइल करिए। और आज जो मुझे बताना है डिप्लोमा इन एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में बताना है, जो कि वो बात इसमें 3 तरह की डिसेबिलिटी आती है, जिसमें सीपी की बात करते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी, या डीबी की बात करते हैं, डेफ ब्लाइंडनेस, या मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी होता क्या है? बेसिकली जैसे मैम ने बताया या सर ने बताया कि एक तो HI बच्चा हो गया और एक कौन सा बच्चा बताया था, कोई बताएगा? VI बच्चा। तो कितनी डिसेबिलिटी हो गई टोटल? तो मल्टीपल हो गया ना। लेकिन हमारे कोर्स में जो है सीपी की बात करेंगे और डीबी की बात करेंगे, डेफ ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। उसके ऊपर आपका 2 साल का कोर्स रन करेगा। हम आगे इसके बताते हैं आपको। तो इस जो कोर्स का नाम है वो है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, समझ गए? ठीक है, अब इसका आता है ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि डिसेबिलिटी को डेवलप करना है। किसको डेवलप करना है? जो डिसेबिलिटी है उसको डेवलप करना है। क्योंकि डेवलप किस लिए करना है? क्योंकि इसमें डिफिकल्टी है। समझ रहे बात को? और इसके साथ साथ इसमें हम नॉलेज देंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बच्चे का। जो एमडी बच्चा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमडी बोलते हैं, कि किस तरह से डेवलप कर सकता है, उसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसमें एक असेसमेंट टूल्स होते हैं कि जो बच्चा हमारे पास स्पेशल बच्चा आया है उसको हम असेस कैसे करेंगे, उसके लिए टूल्स है। उस टूल्स के द्वारा असेसमेंट करते हैं और कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को अपनाकर उसको हम असेस करते हैं। और इस असेस करने के लिए बहुत सारे हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। और किस सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई बताएगा? फैमिली और कम्युनिटी। जैसे सर ने बताया CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, तो कम्युनिटी की जरूरत होगी। कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है तो हम बच्चों को डेवलप नहीं कर सकते। फैमिली को रिकॉग्नाइज करना होगा, उसके बाद फैमिली को सपोर्ट करना होगा, फैमिली को चीजें बतानी होगी, तब बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा। इसमें बहुत सारे टीचर्स आपका सपोर्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है स्वाति मैम, मधुबाला मैम, मैं खुद सिद्धार्थ, डॉक्टर नीमा मैम, JC गुप्ता सर, जो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं NIHH के, तो सारे आपको इस कोर्स में सपोर्ट करेंगे। आप सिलेबस की बात करें, इसमें भी सेम है, 6 पेपर है थ्योरी के, लेकिन फर्क ये है सबके नाम अलग है क्योंकि कोर्स अलग है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जैसे मैम ने बताया 21 डिसेबिलिटी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा चीज में होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से एक मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला बच्चा पहचाना जाता है। थर्ड पेपर यहाँ असिस्मेंट, फिर उसकी बात है असिस्मेंट करते हैं, उसके लिए टूल्स होते हैं। और फिर नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। साइकोलॉजी का नाम सुना है? पहले इसका नाम साइकोलॉजी हुआ करता था, न्यू पैटर्न के हिसाब से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेम चीज है। जो साइकोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसमें साइकोलॉजी के पार्ट पढ़ेंगे, किस तरह से बच्चा डेवलप करता है जन्म से लेके और 18 ईयर तक, किस तरह से उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें सारा चीजें बताई जाएगी आपको। कैरिकुलम डेवलपमेंट कि एमडी का कैरिकुलम क्या है, कैरिकुलम का मतलब कि बच्चे को पढ़ाना क्या है। जैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं कि 2 साल में आपको क्या क्या कंटेंट कवर करना है, ऐसे ही इसमें है कि 2 साल में क्या क्या कैरिकुलम डेवलपमेंट होगा। नंबर 6 पेपर टीचिंग अप्रोच एंड स्टडी, क्या योजना बनानी है, क्या अप्रोचेस हो सकती है पढ़ाने के लिए, वो सारी इसमें बताया जाएगा आपको। और इसमें और बता दें जो थ्योरी पेपर्स होते हैं सेम होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अजय प्रैक्टिकल का बताया सर ने, जो एक्सटर्नल होते हैं 45 मार्क्स के होते हैं, थोड़ी 30
का होता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। बाकी सारी चीजें वही मार्क्स की होती है जो ओवरऑल सब्जेक्ट में होती है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सिद्धार्थ सर। आपने डिप्लोमा एमडी के साथ साथ आवाज़ बुलंद रहने की भी प्रेरणा दी है हमारे स्टूडेंट्स को।